All right, guys. So look here. Ola Electric folks are involved in scamming their customers and posting such videos that their hyper service is so good. And these accounts, just notice this, India Retail Investor or something. This is the first one on every post, which is on top of basically appreciating Ola as soon as they post it, and then Ola is sending these kind of emote icon, basically love or kissing or these kind of things in response. And then you have these girls, random new accounts, of course, fake accounts of Ola Electric, to send these praiseworthy messages, which of course Ola Electric is responding to promote themselves. This is what Ola Electric has started stooping into. They have no intention of fixing their service network and all intention to scam people and scam the social media and get, look at how many, all the female accounts, female names with good looking females. See the kind of messages. Bikes feel futuristic and fun. Charu Asopa, Shanti Hai, all females. Hmm? See the love symbol, all females, all fake, so that they can suppress all the critics. If nothing, good job, Team Ola, all females. Rashmika Nand, it looks better in person than in photos, honest to you. Keep scrolling. The last one did not have so much of fake publicity. This one, you just keep on scrolling. Minu, Ahल्या, Ahya, you cannot even pronounce their names. All fake. Vasundhara Grewal, best decision ever switching to Ola Electric. Female cannot even ride Ola Electric scooters because of their height. It's mostly a male thing. Just keep looking, keep looking how they are paying for these fake comments. One of the smartest tech brands out there. Keep looking. Hyperservice is the definition of convenience. Wow, wow, wow. So glad. Think so. Okay. Stay so glad. Consistency is admirable. Wow, wow. How many fake accounts? Just keep looking. Keep looking. देखते रहो, देखते रहो. Ola Electric is more than a company. It's a movement. Woo! Beautifully said. Proud to support a homegrown brand like Ola Electric, Shankar Yadav. Now males have started. Respect the way Ola Electric handles tech and customer needs. Whoa, whoa, whoa. Keep looking. Ola Electric knows how to lead with impact. Wow, wow, wow. Ola Electric stands for innovation and excellence. Wow, wow. Ola Electric is proof that Indian brands can lead globally. Wow, wow, wow. Now, you just keep looking, all the comments here. As soon as this video has come, almost all the comments
Finally, a scooter that feels as smart as my phone. This is me. Ola Electric has made EV scooters mainstream and fun. So this is me, and then comes the genuine comment. So please keep my trust too. My car eh, been at your place for 2 months, and I haven't heard anything since. Why does this person say car? This looks like another. I don't know why this guy has mentioned car. There's no guarantee on their vehicles. Now comes the critical, the real ones. On top, they have filled it with all the fake comments. Now comes all the critics. This is what Ola Electric has been doing. So many fake comments. Keep scrolling. देखते जाओ, देखते जाओ. And look at the video. It's nothing extraordinary. बात यह है कि मेरी प्रियदर्शनी मालदा। मेरा नाम यशवेंद्र है। हरि कृष्ण मेरा नाम है, भुवनेश्वर से आया हूँ। विश्वदीप ब्रदर गाड़ी का लेखक टूट गया था मेरे से। इसका तो ब्रेक लीवर टूट गया था। ओके, फोटो इस टूटा हुआ है। मैं जब ब्रेक मारता हूँ ना तो इस छोड़ता हूँ, रेस नहीं पकड़ती। मेरा विंड ब्रोकन हो जाता है। जनरल सर्विस के लिए लेके आई थी। मेरा थोड़ा जो ट्रेन का साउंड या ऐसा कुछ टैक्सी का साउंड था, मैं इसीलिए आया था यहाँ पे सर्विस सेंटर से। 15 से 20 मिनट लगे मैं पूरा डाउन गया। 30 to 45 मिनट। सिर्फ 1 घंटे में मिल गया था सर। 30 मिनट समय लगा था लगभग। 30 मिनट 20 से 35 मिनट के अंदर ये हो गया। तो जैसे कि आपने देखा, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेके लोग आए और सो कॉल्ड इनका आधे घंटे में हो गया, जो कि बड़ी बात है ओला के लिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स के लिए भी इन्हें घंटों लग जाते हैं, कई बार कई दिन लग जाते हैं रिजॉल्व करने में। गाड़ियां खड़ी हुई हैं इनके सर्विस सेंटर में, कई जगह पे हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सैकड़ों भी नहीं, 1000 से ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई हैं कई सर्विस सेंटर में। ये हाल है, लोग गाड़ियां अपनी कचरे के जैसे खड़ी छोड़ना पड़ रहा है उनको ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर में, जहां पर वो स्क्रैच हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है उनमें, जिसमें ओला कुछ नहीं कर रही है। जो डैमेज्ड पैनल्स वगैरह हैं, जो डैमेज करते हैं बॉडी पार्ट्स, उनको रिप्लेस करने में भी ऐसे करती हैं कि भाई साहब जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान करेंगे अगर रिप्लेस कर देंगे उनको। तो ये है ओला इलेक्ट्रिक। दिस इज ओला इलेक्ट्रिक फॉर यू। It's a horrific thing if you talk about their leadership. Their leadership is not at all bothered to fix open issues. और ये लोग इस तरह से फेक पब्लिसिटी में उतर आए हैं पूरी तरीके से। इससे पहले तो एक आध दो अकाउंट कुछ दिखते थे, अब देखो किस तरह से ये लोग ऐसे सारे के सारे नए अकाउंट, अब ये अकाउंट्स देखो। बात यह बहुत अच्छा लाइन आप इसमें आप बात यह है कि बहुत ही अच्छी। यात्री देहरादून की सर्विस दे रही है। बात यह यहाँ पे बिहेवियर इनके कमेंट्स देखना है। जैसे ये है नीलम, 5 फॉलोअर्स 1 फॉलोइंग, जून 2024, सारे नए अकाउंट हैं, दिसंबर 2024 में खुले हुए, सारे नए अकाउंट हैं दिसंबर 2024 में खुले हुए, जून 20, सो कुछ जून 24 के हैं, कुछ दिसंबर के हैं, सारे बल्क में खोले हुए फेक अकाउंट्स। ये है फरवरी 2025 का अकाउंट, कहीं से उठा के, ये एआई जनरेटेड इमेज लग रही है। फरवरी 25 सबका पैटर्न देखो, दिसंबर 24, कुछ जून 24 के हैं, कुछ दिसंबर के हैं, कुछ फरवरी के हैं, ये जुलाई के आ गए, जुलाई 24, फरवरी 25, जून 24, दिसंबर 24,
ज्यादातर दिसंबर 24 के दिख रहे हैं। February 25, May 24, February 25, ऑलमोस्ट सारे अकाउंट्स फेक। February 25, December 24, February 25, February 25। तो देखते जाओ बस। This is Ola Electric for you now. Keep stooping to low and low levels while keeping things pending. मेरी गाड़ी वॉबल करती है, एक साइड जाती है, आज तक उसमें सिवाय सामने के बुश को टाइट कर दिया, बुश बोल्ट को, पीछे का बुश शॉकअप का बुश चेंज कर दिया, ये सब चीजें वो वॉबल करती है, उसके कारण खराब हो रही हैं। बुशेस सबसे पहले खराब होंगे, फिर बेरिंग खराब होगी और व्हील्स भी पूरे पूरे वॉब हो जाएंगे, चक्के पूरा अनइवन वेयर होगा। ये चक्के बदले, जो टायर्स बदले हैं इसके, टायर्स और व्हील्स पिछले साल, वो इसलिए बदले हैं क्योंकि उनमें अनइवन वेयर था, मगर वॉबल कभी नहीं की थी गाड़ी। जब से बदले हैं तब से वॉबल करती गाड़ी। अब वो उसकी बात कर रहे हैं, चेसिस बदलना है अगर तो सर्विस सेंटर छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए दे आर नॉट गिविंग मी स्टैंड बाय व्हीकल। और चेसिस बदलने से सिर्फ उसका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वॉबलिंग का नहीं होगा। वॉबलिंग हो रही है या तो टायर्स के कारण, या व्हील्स के कारण, या व्हील हब के कारण, या फ्रंट सस्पेंशन के कारण। जो बदला था उन्होंने, 100 किलोमीटर भी नहीं चला और फिर वैसी पहले जैसा होने लग गया, पटकता है बिल्कुल। और एनीवे, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक फॉर यू। 3.5 साल से भुगत रहा हूं, 3 साल से ऊपर हो गया भुगत रहा हूं मैं, और 3.5 साल हो गए हैं जब से मैंने पे किया है इसके लिए। पहले मुझे 3.5 महीने तक इन्होंने अच्छे से ये सब एस्केलेशंस जैसे सर्विस के लिए करना पड़ रहा है मुझे, ऐसे मैंने एस्केलेशंस किए थे डिलीवरी के लिए। 3.5 महीने के बाद में गाड़ी मिली मुझे, 3 महीने पुरानी गाड़ी, डैमेज्ड और डिफेक्टिव कंडीशन में, जो कि आज तक कभी भी फॉल्ट फ्री कंडीशन में नहीं रही है। दैट इज ओला इलेक्ट्रिक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको फॉरवर्ड कीजिए आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा रीच हो। लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।